All right. The first similarity is that the world is a dangerous place. Second, both theories realize that countries can go to war with one another and destroy one another. Third point is there is no world government in place that can prevent countries from doing harm to one another. Nobody can stop any country. जिसको जिसके साथ fight करनी है वो कर लेता है with by giving various reasons. Realism and liberalism believe that military power is important. It means that countries can take benefits from military power. ठीक है? Or they both are aware that what they want to get whatever they want. हर country किसी दूसरी country से कैसे dominant हो जाती है? By using its military. मिलिट्री के थ्रू बात कर रही हूँ अभी फिलहाल. लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रशिया एंड यूक्रेन. ठीक है, दे आर बोथ शोइंग देयर बेस्ट. अगर रशिया कर रहा है तो अभी तक यूक्रेन भी तो उतना जवाब दे रहा है ना बराबर का, वरना तो ख़त्म हो जाती वॉर. इट्स बीन मोर देन 1 year दैट स्टिल दिस वॉर इज कंटिन्यू, राइट. ये लिख लिया, कोई इसको मिटा दे. नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस. ये दे दीजिए, ये भी मिटाना मुझे. All right. While these are important similarities, there are less important than the differences. First, realists believe this is one point. Realists believe that military power is the only relevant kind of power. फौज मजबूत है, फौज ताकतवर है तो बेहतरीन है. ठीक है, that's what they believe. अगर वैसे देखा जाए कि if you do not have the strong military, I think you all won't be able to control anything. अगर नहीं होंगे तो enemy can easily overcome to you. Realists don't believe that things like soft power So realists don't believe that things like soft power can be at all important, right? कोई हमदर्दी और वो उसका नहीं है, जो whatever is the reality that you have to face. Now what does liberals believe? That military power
one kind of power and that is not even the most important kind of power in many cases. Rather, they believe economic power just compare both there is one point military power. What realists believe that military is the only relevant kind of power, and they also believe that soft power पे realists believe नहीं करते. What does liberal says? Liberals believe that military power is only one kind of power. सिर्फ फौज पे ही आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते हैं. That's what liberals believe. And that is not even the most important kind of power in many cases. बाज़ औक़ात जहाँ पे military action नहीं भी required हो और वहाँ पे अगर military actions कर ले जाए तो वो भी आपके against चला जाता है. ठीक है? That's what liberals believe. They believe that things like economic power and moral power can be more important than military. If your economy is strong, then you are the winners of the world. Can we fix the example of China over here? क्या? Canada and? Have we ever seen Chinese military interfering in things? अभी थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले उनके इशू हुआ था, इंडिया के साथ हुआ था. कहाँ पे, किस पॉइंट पे हुआ था? ऑन लद्दाख, राइट. रेस्ट हमने कहीं नहीं देखा कि चाइनीज जो हैं वो करें. साउथ चाइना सी तो उनके साथ था ना. हाँ, लेकिन आपने चाइना को ओवरऑल मिलिट्री पे रिलाई करते हुए देखा नहीं. इट्स फोकस मोर एंड मोर ऑन इकोनॉमी. दे आर रूलिंग द वर्ल्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस. क्लियर? लिख लिया यहाँ तक सबने? चलो मिटा दें इसको. सेकंड पॉइंट फिर मैं आपको दूँ. अच्छा देखें, बस अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे तो बस ये वाले पॉइंट्स आप अपने जहन में रखिएगा. ठीक है? फिर ये डिपेंड करता है कि कैसा सवाल आपके एग्जाम में आया, उस लिहाज से आपने अपने आंसर को मोल्ड करना होगा. एंड कीप द रेलेवेंट एग्जाम्पल्स इन योर माइंड. पॉइंट्स मैंने यही दिए हैं, इसको ही लिख लीजिएगा. और भी आप लोग पढ़ेंगे तो और भी पॉइंट्स को जहन में रखिएगा, बट गो विद एग्जाम्पल्स. अगर आप इधर सारे ये जैसे पॉइंट्स लिखने के बाद अगर आप एक आध पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स बता देते हैं, कंट्रीज का बता देंगे, तो वो उससे आपके क्वेश्चन के जो आंसर की वर्थ है वो बढ़ेगी.
कि ये सिर्फ अमेरिका ही जो है वो डिफरेंट वर्ड ऑर्डर लेके आया है और लिबरलिज्म उसी ने मतलब एक आइडियोलॉजी है, तो वही इसको डिफर क्यों करते और उनकी जो इंटरफेरेंस है वो हर जगह पे है, वो मिलिट्री भी इंटरफेरेंस करते हैं और वो हर चीज़ इंटरनल मामले में इंटरफेयर करते हैं और उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया था कि नो सुपर पावर, उन्होंने अपनी हेजेमनी की कायम की। सुपर पावर, नो सुपर पावर का कह के फिर भी वो डिनाई कर रहे थे और हर चीज़ में कर रहे थे। तो फिर हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कुछ भी नहीं जस्टिफाई करेंगे, हम एज इट इज बताएंगे, हम उनके वो वाला भी पॉइंट बताएंगे जिसमें वो अपने आप को डिनाई भी करें और उस वाले पॉइंट को भी मेंशन कर देंगे और दैट इज हाउ वी विल कंक्लूड कि दे आर टेकिंग थिंग्स पैरेलल, अपनी हेजेमनी भी लेके चल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बड़े शरीफ हैं। यू कैन राइट दिस इन योर आंसर। यस जी, क्या होती हैं सॉफ्ट पावर्स? कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है जैसे अमेरिका करता है अपनी बुक्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, और अभी बारबी आई थी हाँ, तो इसके थ्रू अमेरिका ने इतना पैसा कमाया और इससे अपना कल्चर भी प्रमोट किया, तो ये सॉफ्ट स्किल होती है। सिर्फ तलवार मार के ही नहीं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, वी ट्राई टू अडॉप्ट देयर कल्चर, हम उनकी वो वाली हैबिट्स को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे जो छोटे केबल देख रहे होते हैं वो वही शांति हो और आप पता नहीं किस आत्मा को शांति मिले और वो वाली सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, तो वी अडॉप्ट थिंग्स। क्लियर? मिल गया आपको, समझ आ गया सॉफ्ट? कैलाश वैली, जी जी जी, इसका कल्चर दबा करता है, डिस्टर्ब करता है, मतलब अपने मुल्क अपने मुल्क में भी डिफरेंस है, वो उनका कल्चर बिल्कुल हमारे कल्चर से डिफरेंस है, ठीक है। आते हैं हमारे मुल्क में इसलिए Let me tell you one thing over here. If we have the cultural differences in our country, it will also matters. Because outsiders will take the advantage of it. आप अगर ethnic differences भी करें, अगर if in your country there are riots based on ethnic crisis, तो उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं बाहर। Because जी बोलें। मसला ये है कि पाकिस्तान का कोई कल्चर हकीकत नहीं है, अगर सीधी से बोलेंगे वो बोलेगा तो बेहतर है कि पंजाब बोलेंगे वो अपना कल्चर बजाय पाकिस्तान का मेन जो कल्चर है, मेन इसके जो वो तो होता है वो तो कोई नहीं, खुद कराना ये वो ही दूसरी लैंग्वेज बना हुआ है, तो एक दो तीन तो बोल दूँ तो लश्करी बोल कहाँ है? मतलब ये है ना कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। Of course. Still, it's been 76th year. Still, we are working hard on our survival. कि हमने सर्वाइवल को पॉसिबल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जब ये छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं जिन ममालिक के, तो वो सिर्फ अपने मुल्क के लोग नहीं देख रहे होते, जो बाहर बैठे ऑब्जर्व कर रहे थे, दे आर मोर कीन के व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर कंट्री। मैम अभी G20 में इंडिया ने कितना अच्छा अपना कल्चर प्रमोट किया है सारा, उन्होंने सारी सॉफ्ट पावर की कैसे दिखाई है, इंडिया नॉट हैविंग दैट नाउ। नहीं नहीं, वो तो अगर हमारे मुल्क में भी कोई समिट होगा तो वी विल ऑल्सो प्रेजेंट। वी आर नॉट दैट गुड। क्यों? OIC कॉन्फ्रेंस आपको याद नहीं है 1974 में जो 74 ही थी आई थिंक, इफ आई एम नॉट, इस्लामाबाद, वो जो हुए थे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था ना, OICs के सारे वो जो उसमें थे। तो वी डू प्रेजेंट कल्चर, तो इट्स कंपल्शन कि आपने अपने आप को कल्चर को प्रेजेंट तो करना ही है सोसाइटी में। वो उन्हीं का ही बता रहे हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर्स थे शायद सारे, तो उसमें हमने कल्चर नहीं पेश किया अपना, वी प्रेजेंटेड द कल्चर। चले जी, सेकंड आइए।
institutions because they can't force country to comply they also believe that the United Nations Okay, now here what the realists believe that there is no point to international institutions because they can't force a country to comply. They believe, for example, the UN is pointless because it can't keep a country from doing what it wants. ये जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इदारे बने हुए जो ठेकेदार बन जाते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सो रियलिस्ट डोंट बिलीव ऑन दैट. इवन उन्होंने तो यूएन की एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर दिया है. मेरे अगर इंटरेस्ट कुछ और है तो मैं क्या यूएन को फॉलो करती रहूँ, मुझे अपने मुल्क के मुफाद में बात देखनी है तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट फॉलो एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और या मैं उसकी बात सुनूँ. माई जैसे कहते हैं ना कि माई शिप माई कमांड, तो माई कंट्री माई कमांड, राइट. सो दैट्स व्हाट रियलिस्ट बिलीव. नाउ सी व्हाट लिबरल्स बिलीव. चलें जी. Now liberals understand that the UN can't force countries to obey, but they believe that it is still very important. They believe that international organizations give countries way in which to cooperate with one another and gain one another's trust. ये उस बात को रियलिज्म को भी बिलीव, रियलिस्ट थॉट्स को भी, स्कूल ऑफ थॉट्स को भी ट्रस्ट कर रहा है, उस पर भी समझ रहा है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है
उनको बेशक ना मानो, बट एटलीस्ट वो आपको मशवरा तो दे सकते हैं ना कि हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर स्ट्रैटेजीज। करता है एक सिंपल सी जिससे मैं समझती हूँ, जैसे मेरी इंटरप्रिटेशन है, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई हैं, वो इसलिए क्योंकि आप इन ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले यूएन वगैरह बनने से पहले दुनिया का कानून था वो एक जंगल का कानून था। इन ऑर्गेनाइजेशन ने आके समहाउ उसको एक जू की तरह बना दिया कि खतरनाक जानवर तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते जिससे पहले पहुँचा। थोड़ा कंट्रोल किया ना चीज़ों को। अब देखें हर थ्योरी में डिफरेंट पॉइंट्स तो होंगे ही, तो इसीलिए फिर जो लोग कहते हैं ना मैं फलाने स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, तो उसका मतलब यही होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी मेंटल कैपेसिटी इस पॉइंट को सपोर्ट करें तो वो इस स्कूल को ऑफ थॉट के वो फॉलोअर्स हो गए हैं जो इसको बिलीव करते हैं कि हाँ ठीक है उसकी बात भी मान रहे हैं और लेकिन एक दूसरी राह भी और फर्दर ब्रांच भी निकाल रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट्स लेट्स सपोज मैं आपकी एकेडमिक्स की एग्जांपल दे दूं, या साइंस होती थी या आर्ट्स होती थी, या इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे, ठीक है कुछ अर्सा पहले तक। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ देखा कि भाई ना सारे डॉक्टर बन सकते हैं ना सारे इंजीनियर्स बन सकते हैं, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स निकाले, कोई सोशल साइंसेस का निकाल दिए, कोई सोशियोलॉजी निकाल दी, कोई ये निकाल दी, कोई वो निकाल दी, फर्दर ब्रांचेस निकाल दिए कि अगर एक स्कूल में नहीं हो सकता तो चलें किसी दूसरे स्कूल में हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिबरल्स हैं ये आपको बेसिकली रास्ते ही बता रहे हैं कि आप किधर किधर से जाके अपने मफाद पे आ सकते हैं, ठीक है। टू सम एक्सटेंट दे फॉलो रियलिज्म, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो हर थ्योरी में डिफरेंस है ही है ना, राइट। तो आपका जब आंसर होगा थ्योरीज में भी तो आप सारी थ्योरीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, एंड जब आपका कंपैरेटिव एनालिसिस होगा पढ़ने वाले को इतना ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि भाई द कैंडिडेट हैज़ कम विथ सर्टन प्रिपरेशन। ऐसे नहीं उठ के आ गए कि बस ठीक है जी हाँ हवा में बात नहीं करें। सो इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स फॉर एनी सब्जेक्ट, जो भी ऑप्शनल आप लोग चूज़ करेंगे, यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल। इफ़ यू डू नॉट हैव द लॉजिक योर आंसर विल नॉट हैव सफिशेंट वर्थ, ठीक है। Till that it is clear? Can you give any example? UN के किसी कोई डिसीजन जो आपकी जहन में हो? जैसे कोई यूनाइटेड नेशन ने बहुत बड़ा कोई फैसला किया हो, में जो वोट करती है तो उसको फॉलो नहीं करती। उसमें जो ताइवान और चाइना का मसला हो रहा है, उसमें आर्टिकल है कि ताइवान चाइना का है, और अभी ये खुद बोल रही है कि ताइवान चाइना का नहीं है। खुद आर्टिकल आई थिंक 539 है। नहीं हो सका जी कश्मीर। सो यू कैन राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो बेहतरीन हो जाएगा आपका आंसर। इफ यू थिंक दैट इट इज मैचिंग विद व्हाट यू आर राइटिंग तो फिर आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। थ्योरीज को पढ़ने के बाद फिर आपने मौजूदा दौर को देखनी है। वो जो पहले की क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल रियलिज्म और वो सारे तो गुजर गए हैं, उन स्कूल ऑफ थॉट को लेते हुए आपने आज के दौर की स्टडी करनी है। मैं आप लोगों के कुछ पास्ट पेपर्स देख रही थी, तो उन पास्ट पेपर्स में ये होता है कि पिछले कोई कॉन्सेप्ट दे के पूछा आज के बारे में जा रहा होता है, तो आपने उसको करंट वो यूनिपोलर से बाइपोलर हुई, बाइपोलर से मल्टीपोलर पे वर्ल्ड आ गई है, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी में फिर आपने इन चीज़ों को देखना है, और ये नहीं है कि एक सवाल में सारी एग्जाम्पल डालें, एक दो भी काफ़ी होंगी बस।